Yes everyone, good evening. So लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? थोड़ा सा रिवाइंड हो जाए, क्या पढ़ा था आपने ने लास्ट लेक्चर में? Definition of economic development, characteristics and limitation. Characteristics and limitations of what? Which? क्या पढ़ा था? Economic development. Very good, economic development. So कितनी characteristics थी economic development के अंदर? How many? 7. So first one, number 1, that is Continuous process. Continuous process. Yes, economic development is a continuous process. Second, Quantitative and qualitative change. Quantitative and qualitative change. Third, Change in demand. Change in demand. Fourth one, Labor become more dynamic. Very good, labor become more dynamic. Fifth one, Increase capital formation. Yes, level of technology, change in level of technology. Sixth one, Increase in capital formation. Increase in capital formation. Very good. And last one, Development becomes self-motivating. Self-motivating. Very good. So characteristics कितनी characteristics हमारी हो गई. Limitations of economic development कितनी थी? 3. 3. First number. What is the limitation of economic development? Difficult to measure. Difficult to measure. Second, yes. Practical application. Yes, there is no practical application. Yes. And third one, Human development cannot consider. Yes, human development cannot considered. और हम लोग एक और चीज भी बोल सकते हैं कि कंट्री में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, so it doesn't mean that the standard of living of everyone rises. Why? So because there is an unequal distribution of income in a country. So ये चीज भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है? अच्छा, डेफिनेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किन एक्सपर्ट्स ने दी थी? किन इकोनॉमिस्ट ने आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दी हुई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की? Michael Todaro. Michael Todaro. C.M. Meyer. हाँ, but Michael Todaro said economic development is multi-dimensional process. Very good. Economic development is a multi-dimensional process. Second one, that is G.M. Meyer. हाँ, G.M. Meyer ने क्या क्या चीजें कंसीडर की थी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस. 3 चीजें याद आ रही है? Yes. Population living below poverty line should not increase. First thing. Second, Distribution of income does not become further inequality. very good. And third one, there is Continuous rise in real per capita income for a long period. Yes, for a long period. Very good. And third one, third definition किसने दी थी? Matchlock. मैचलअप ने भी कहा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है. उसमें भी 3 चीजों की बातें की गई थी. सबसे पहले Factors of production increases. कंटिन्यूअसली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है. दूसरा Employment increase. Change in technique of production. Very good, change in the technique of production. And third one, that is Per capita income and standard of living increase. very good, per capita income. Change in population. हाँ, ये चीज इसमें आएगी. Irrespective of change in population, right? So whether population increases or decreases. Okay, very good, everyone. So it's rewind हो गया सारा. And now we'll move to the difference between growth and development, right? हम लोगों ने इसके अंदर 6 points already considered की थी, right? Growth and development. लेकिन कुछ ऐसी points है जो हम लोगों ने consider नहीं की थी, वो हम अब देखेंगे. और यहाँ पर एक important सा statement पूछा जाता है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे. MCQ में वो चीज पूछी जाती है actually, बहुत corner question है, लेकिन हर बार mostly पूछते ही है, ठीक है? So let us read
हम लोग रीड करते, क्या लिखा है पैराग्राफ आपका, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ डिफरेंस बिटवीन का, पेज नंबर आपका 17, क्या लिखा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ. यस, ऑफ कोर्स इट इज ट्रू. Economic growth is that process in which the income of the economy increases, but it does not bring any institutional change in the economy. So यहाँ पर economic growth में क्या बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जाता है, income increasing देखा जाता है, और यहाँ पर कोई भी institutional change यहाँ पे देखते नहीं है. ठीक है. Next क्या लिखा है, the psychology of the people does not change in the economic growth. लोगों की मेंटालिटी, लोगों का सोचने का तरीका वही रहता है जो पहले से चलता हुआ आ रहा है. And this economic growth is mostly seen in which type of countries? Tell me. Which type of countries आपको ये economic growth देखने को मिलता है? Yes, everyone. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया. America, Australia, America. Yes, so this is actually developed countries, right? Developed countries में यहाँ पे अब चीज आ जाता है, while in economic development, along with the increase in the income of the economy, income तो बढ़नी है देश में, उसके साथ साथ structural change भी आना चाहिए. देखो modernization भी आना चाहिए, लेकिन मॉडर्नाइजेशन दो तरीकों के यहाँ पे बताए हुए कि लोगों की सोच भी सुधरनी चाहिए, लोगों की साइकोलॉजी में भी चेंज आना चाहिए, प्लस इन एवरी सेक्टर, वेदर इट इज इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और अ सर्विस सेक्टर, ये तीनों सेक्टर में भी आपको चेंजेस देखने को मिलना है. मतलब यहाँ पर इनकम इनमें बढ़नी चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इवन क्वालिटी इम्प्रोवाइजेशन प्लस क्या चाहिए, और लोगों की मेंटालिटी, लोगों का सोशल स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का, वो भी चेंज होना चाहिए. तो यहाँ पे वो चीज की बात की है. यहाँ पे अंडरलाइन करना कि जेराल्ड मियर, दैट इज अ जीएम मियर, हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ते हुए है ना, उन्हीं का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज अ जेराल्ड मियर. उन्होंने क्या स्टेट किया है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, डेवलपमेंट इज ग्रोथ प्लस चेंज. क्या बोला है, ग्रोथ तो करना ही है, नेशनल इनकम तो बढ़ाना ही है, लेकिन नेटवर्क एरर है मैम. हेलो 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 मैम, आपका नेटवर्क एरर है. मेरी आवाज प्रॉपर नहीं है मैम? आपकी प्रॉपर है. प्रॉपर है. मैम प्रॉपर है. एक्चुअली कुछ एक दो दिनों से यहाँ पे इशू चल रहा है नेटवर्किंग का. आई थिंक मेरे यहाँ पे तो बहुत जोरों से बारिश पड़ रही है, सो मे बी इस वजह से थोड़ा नेटवर्किंग इशू हो रहा हो, राइट? डोंट वरी. सो मैं रिकॉर्डिंग तो कर ही रही हूँ लेक्चर की, कहीं पे भी कुछ भी मिस हो जाता है, सो प्लीज आप वो रिकॉर्डिंग देख लेना उसके रिलेटेड. ठीक है, चलो. सो यहाँ पे मैं बात कर रही थी, जेराल्ड मेयर ने बहुत इंपॉर्टेंट सी पॉइंट कही है कि डेवलपमेंट इज ग्रोथ प्लस चेंज. क्या बोला है यहाँ पे, ग्रोथ तो करना ही है, लेकिन चेंज भी आना चाहिए. जब ये दोनों चीजें होगी, देन हम लोग बोलेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. ओके, राइट? सो ये पॉइंट को प्लीज अपने टेक्स्ट बुक्स में अंडरलाइन कर दो, बिकॉज ये 1 मार्क या एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता ही है, या 2 मार्क्स में इवन आपसे स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ग्रोथ प्लस चेंज. क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इवन हम लोग वेलफेयर भी कंसीडर करते, इकोनॉमिक वेलफेयर, दैट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का, और ये सारी चीजें भी कंसीडर किया जाता है, प्लस लोगों की मेंटालिटी में भी चेंज हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं. So development is growth plus change. Okay, so this is very important. Now चलो हम लोग डिफरेंस बिटवीन एक बार फिर से रिकैप करेंगे. 6 पॉइंट्स तो हम लोगों ने समझी थी, अब हम लोग और पॉइंट्स भी समझेंगे. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ पहले स्लाइड में डेवलपमेंट and economic
यस स्टार्ट। चलो सबसे पहली पॉइंट नंबर 1 इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, चलिए सबसे पहले क्या लिखोगे, मीनिंग आप लिख सकते हो, राइट। क्या लिखोगे उधर, मीनिंग आप लिख सकोगे। आप है ना, देखो ये चीज है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, या तो 3 मार्क्स में या तो 5 मार्क्स में। अगर 5 मार्क्स में पूछे तो आपके पास टोटल यहाँ पे है 9 पॉइंट्स, तो एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, दैट इज अ मीनिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मीनिंग लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले छोटी सी मीनिंग लिखेंगे कि इट इज ए मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू किसने बोला है, माइकल टोडेरो। और इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन प्लीज प्रोफेसर हानसेन की। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, टेल मी व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर दिख रहा है ना, एक मिनट। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, growth rate of national income. Growth rate of national income or rise in total quantum of goods and क्या बोल रहे services. हो, एक मिनट क्या बोल रहे हो। Economic growth refers to Growth rate of national income. or rise in total quantum of goods and services. ओके, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और या तो राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ Quantum goods. गुड्स। ओके, तो ये डेफिनेशन कही है प्रोफेसर हानसेन। ओके, तो हम लोग दोनों साथ में ये चीज लिखेंगे, डेफिनेशन। सेकेंड पॉइंट मेरे साथ साथ में लिखते जाना जो भी है। ओके, चलो सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डैश प्रोसेस। बताओ, एन इकोनॉमिक Continuous. डैश प्रोसेस, टेल मी। Slow process. स्लो प्रोसेस, Economic development is a continuous process. स्लो आएगा यहाँ पे, स्लो आएगा। Rapid process. Economic growth. मैम continuous process कैसे? रैपिड प्रोसेस। ओके, Rapid. थर्ड पॉइंट टेल मी, जल्दी बताओ फटाफट। Difficult to measure. Difficult to measure, and this one easy to measure. Next one, Economic growth is not possible without economic development is not possible without economic growth. Economic growth, okay. Economic development is not possible without economic growth. Why ऐसा, क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता है this is economic growth and this is economic development. ये आएगा ही इसके अंदर, but देखो economic growth is possible, हम लिख सकते हैं economic growth is possible. Economic growth is possible without economic development. Without economic development. ये मैंने ना डायग्राम बना दिया है यहाँ पे ताकि आपको याद आ जाए कि क्यों ऐसा। फिफ्थ वन, Development is broad. Of economic okay, very growth good. is narrow. Economic development is broad. And Economic growth is broad. Narrow. Narrow. Sixth one. मैम आपने इकोनॉमिक ग्रोथ मैम आपने 5th पॉइंट में इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा है डेवलपमेंट की जगह, ईजी नहीं ईडी आएगा नीचे 5th पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Economic development is not possible without economic growth. लिखा तो है सही। मैम 5th पॉइंट Okay.
sorry, broad concept. Next, economic development is related to developing country. Okay, very good. Related with developing countries. And economic growth is related with developed country. Developed countries. Okay. 7th. Quantitative and qualitative changes take Very place. good. Quantitative plus qualitative change. इधर क्या आएगा? Only quantitative change. Quantitative change. Yes. Next, 8th one. Economic development is a process. Very good. Economic development is process. And this one, Economic growth is occurrence. Occurrence. Okay. 9th. Yes, Frida. Economic development is related to distribution of per capita income. Economic development is related with distribution of per capita income. हाँ, मैं यहाँ पे underline करूँगी इस चीज को. Distribution of per capita income. Why? Distribution क्यों देखा जा रहा है यहाँ पे? Because you know कि in a country like India या in a developing nations यहाँ पर किसके ऊपर फोकस किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए. और यहाँ पर क्या किया जाता है फोकस? सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम को बढ़ाओ, बस. तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या लिखोगे? इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड विद Increase in per capita income. increase in per capita. Increase in per capita income. Okay. थोड़ा सा नीचे कर दूंगा इसको. Yes. 10th number point. Yes. बोलो क्या होगी? मोस्टली हो गई सब. कौन सी बाकी रही? Yes, एक चीज बाकी Question रही. of utilization of unutilized resources arises. Yes. In economic development, the question of utilization of unutilized resources arises. यहाँ पे क्या देखा जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि हमारा देश डेवलपिंग है, ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में रिसोर्सेज जो अनयूटिलाइज्ड है उनको कैसे यूज किया जाए, उनको कैसे प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो सके देश को, ये देखा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजेशन of unutilized resources arises. और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 10th नंबर पॉइंट हियर. यहाँ पे क्या देखोगे? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे खाली. सो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या लिखा है? हाँ, फोकस इज ऑन distribution of available resources. Okay, everyone. 10 पॉइंट 5 मार्क आपका. 10 points 5 marks. This
क्वेश्चन एक्चुअली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये मोस्टली पेपर में आता है। फर्स्ट टर्म में भी आएगा, आपके प्रीलिम्स के एग्जाम्स में भी आएगा, देन फाइनल एग्जाम्स में भी इसके चांसेस होते ही है। तो इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन तो एकदम अच्छे से लर्न करना है, मतलब करना है। तो देखो स्टार्टिंग में 6 to 7 पॉइंट्स बहुत इजी लिखी है, बाकी ये 9 और 10 ऐसी थोड़ी पॉइंट्स है जो थोड़ी बहुत डिफिकल्ट लगती है बच्चों को याद करने में, बट बाकी की पॉइंट्स तो वेरी वेरी इजी एक्चुअली। और जनरली